Evening student, due to the evaluation work, now I will give the videos in the evening time, and the next day you have to do it. Okay, today is the first day. I'm giving this video in the evening time. uh, Today we will continue this. I think 15b we have done in the last class. Today we will continue this 15th chapter along with this C exercise, but different form is there. We have to discuss today linear upon quadratic form. Even though yesterday also we have got this form, but the difference over here is we are not able to factorize the denominator today. Yesterday we were able to factorize this term, so we were using partial fraction. Now this time it is not possible to use partial fraction because denominator term is not factorized at all. अगर डिनोमिनेटर की टर्म फैक्टराइज नहीं हो रही है तो तभी ये फॉर्म हमें लगाना है, नहीं तो हमें अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल, इफ इट इज फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, देन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड व्हाट यू हैव टू डू, you have to directly use the that partial fraction method which we discussed yesterday. So let's start this thing. कैसे इसे करना होता है? So first of all what we have to do, we should write this question without integration. Then after that what you have to write, or in fact what you do, you just copy the numerator only. Then you write a differentiation of the denominator plus b. This you should do in each and every question. So look at here, a into differentiation of the denominator. x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और -2 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. It is b, and in left side it is 2x plus 5. Now what you do, compare the coefficients. Compare the coefficients of x and constant. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स और x के कोफिशिएंट्स को हमें कंपेयर करना है. तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2a, सो यू शुड राइट हियर 2a. Okay, from right side we are writing 2a. Here in left side the coefficient of x is 2, so we should write 2 only. So therefore the value of a is 2 by 2, that is 1. Similarly, if you multiply this inside the bracket, it will be minus a plus b. So it is minus a plus b is equal to the constant term, that is 5. So the value of a we are going to substitute, so we will get b is equal to 6. So a we are getting 1 and b is getting 6. Therefore this value we have to substitute in equation number 1. This equation means in place of 2x plus 5 we are going to write now a, that is 1, 2x minus 1 plus 6 in our question. हमारे जो क्वेश्चन में जहाँ पर 2x प्लस 5 है वहाँ पर हमको उसे 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 लिखना है, यानी कि यहाँ पे. सो देयरफॉर आवर क्वेश्चन विल चेंज लाइक दिस. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. And the second part is integration of 6 dx upon x square minus x minus 2. So what you have to do, you have to integrate this portion separately and this portion separately, and then we will include it. Okay, so let's do it. So student, here you got a is 1, b is 6. Now in our question, in our numerator we are going to write in place of 2x plus 5 1 into 2x minus 1 plus 6. हम अपने क्वेश्चन में न्यूमिनेटर की जगह पे 2x प्लस 5 को हम इस तरह से रिप्लेस कर देंगे. सो बाय रिप्लेसिंग व्हाट विल हैपन, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, इसकी जगह पे हमें लिखना है 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6. सो 1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एक साथ आएगा और 6 अपॉन डिनोमिनेटर एक साथ आएगा. अब इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा. इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और इस एक्सिस डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे, तो ये आएगा 2x माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी. यहाँ पर 2x माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी है. सो ये पोर्शन डी टी हो गया, नीचे टी, तो डी टी अपॉन टी दैट इज लॉग टी हो जाएगा, जी टी अपॉन टी.
और जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जो नीचे फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है। तो ये हमने क्या किया, जो x था उसको लिख लिया 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, यानी कि b हमारा हाफ है, तो हाफ का स्क्वायर प्लस होगा उतना ही माइनस भी होगा, और -2 हमारा रिमेनिंग है। तो इन दोनों को हम अरेंज करेंगे तो ये -9/2 4 बन रहा है, तो उसको मैंने 3/2 का होल स्क्वायर कर लिया, जबकि फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से क्लब हो गई। उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी रन इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। सो 1/2a, द फॉर्मूला इज 1/2a. व्हाट इज द फॉर्मूला? The formula is 6 into 1/2a into log of x minus a upon x plus a. That formula we are applying here. Here in place of t we will write x square minus x minus 2. So by cancelling out, this is our final answer. Okay. So look at once more. The question was given like this. Here there is no possibility for this factorization of the denominator. So we are not able to use partial fractions over here. तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे। तो एक टेक्निक है हमारे, क्या होता है, न्यूमिनेटर को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। उसके बाद जब इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1 और b। अब हमें दोनों तरफ कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स ऑफ x को, ठीक है। तो कंपेयर को करेंगे तो a का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2a, और इधर a का कोफिशिएंट है 2, तो 2a इक्वल टू 2 आ गया। तो इससे a की वैल्यू 1 आ गई। अब कॉन्स्टेंट टर्म देखो, a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a प्लस b दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। -a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 1 रख दी तो -1 होगी, तो ये +6 हो जाएगी यहाँ पर। तो b 6 आया, a जो है 1 आया। तो इसको हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन के न्यूमिनेटर में 2x प्लस 5 को लिखना है 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 1 आई है और b की वैल्यू 6 आई है। क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कि 2x प्लस 5 को हम ऐसे लिखेंगे, जिसे हमें इक्वेशन नंबर 1 भी बोला था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें रखना है। तो रखने से क्वेश्चन के दो हिस्से हो गए। इस क्वेश्चन में हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाया, जिसमें टी लेट करके ये पोर्शन आ गया हमारा, देखो यहाँ पर। और ये हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे डिनोमिनेटर में, जो हमने पहले भी किया हुआ है। तो ये काम हमने यहाँ किया, और इसमें देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं नीचे। यहाँ पर तो खैर सिंपल हो गया, डी टी अपॉन टी लॉग टी बन गया, और बाद में टी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो दिस इज द important question. So take the hint from this question and try to simplify the question from this exercise. Thank you.